हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? कैसी पढ़ाई चल रही है? किस तरह से आप लोग अपने लक्ष्य के प्रति जुझारू रूप से लगे हुए हैं? आई होप दैट यू आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल and you have pulled up your socks in order to achieve the greater ambition that you all have set out for, that to make a great career in the field of law. And I know that the amount of hard work that you are putting in, the tireless efforts that you are making, that will be worth it one day. वो दिन ज्यादा दूर नहीं है. The day is not far away that your name will be shining like, say, the rainbow shines in the, say, rainy season in the sky, in the top sky. So keeping that positive thinking in our stride and having that regard for the positivity ahead, let us start today with the session wherein I shall be discussing certain questions from constitutional law, from the political polity wala part in the under the Constitution of India. That, say, the questions are very important. Those have been asked several times and there is a higher probability that it shall be asked time and again in the years to come, right? So the guys, the first question before you is as follows. The first question is, who appoints the Advocate General of the state? And the options are before you: the President, the Prime Minister, the Governor and the Chief Minister. What is the correct option, A, B, C or D? I am very sure that you must be knowing the answer. That is, the correct option is the option B, that is the Governor. The Governor is the correct answer for this question. Under Article 165 of the Constitution, I am telling you in a, say some kind of detail I am giving you about this, that Article 165 tells about the constitutional position of the Advocate General of the state. My dear friends and my dear students, Article 165 clause 1 talks about that the governor is having the right to appoint the Advocate General of the state. एंड कौन बनेंगे एडवोकेट जनरल, ये भी क्लॉज 1 में ही बताया जा रहा है कि एनीवन हु इज एलिजिबल टू बिकम द हाई कोर्ट जज, दैट पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट. And my dear students, I must tell you that Advocate General is the first law officer of the state. Advocate General is the first law officer of the state. Attorney General under Article 76 of the Constitution, Attorney General is the first law officer of the country, of the nation, at the central level. But under Article 165, Advocate General is the first law officer of the state, at the state level, right? So under Article 165, there are 3 clauses and the first clause deals with this. The second clause talks about that it shall be the duty of the Advocate General to represent the government. जहां कहीं भी लीगल इश्यूज आएगा, जहां कहीं भी लीगल प्रॉब्लम्स आएंगे, it is the onerous task, it is the obligatory duty of the Advocate General to represent the state government and bring the state government out of the doldrums. जहां कहीं भी कीचड़ में स्टेट गवर्नमेंट फंसेगी, वहां पर काम है एडवोकेट जनरल का कि उस लीगल प्रॉब्लम से, लीगल इश्यूज से, लीगल डोल्ड्रम से, कानूनी कीचड़ से स्टेट गवर्नमेंट को बाहर निकालना है. ये एडवोकेट जनरल का परम कर्तव्य है. Coming down to the clause 3 of the
Article 165, that is, Advocate General shall hold the office during the pleasure of the governor. During the pleasure of the governor. And remuneration कितना मिलेगा? That exactly depends upon the governor. That what governor may determine, that should be the remuneration of the Advocate General. मैं आपको इससे एक छोटी सी बात बताता हूं. आप सब लोग जान रहे हैं कि गवर्नर अपॉइंट करता है, लेकिन एक्चुअल में गवर्नर किसको अपॉइंट करता है? माय डियर स्टूडेंट्स, द गवर्नर अपॉइंट्स एट द बिहेस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर जिसको बोलते हैं उसी को गवर्नर अपॉइंट करते हैं. आप बिहार में ही देख लो, बिहार में ही देख लो. चारा घोटाला का केस कौन लड़े भाई साहब? चारा घोटाला का केस लड़े पीके शाही, प्रशांत कुमार शाही. जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं 2005 में, तो एडवोकेट जनरल किनको बनाते हैं? प्रशांत कुमार शाही को, पीके शाही को एडवोकेट जनरल बनाते हैं 2005 में, जब चुनाव जीतते हैं लालू को हरा करके. तो क्योंकि प्रशांत किशोर से नजदीकियां थी नीतीश कुमार की. 2010 में जब विधानसभा में फिर से नीतीश कुमार जीतते हैं विद अ थंपिंग मेजॉरिटी, आरजेडी वाज क्रश्ड. आई थिंक दे वन ओनली 22 और 24 सीट्स. मैं एग्जैक्ट श्योर नहीं हूं, लेकिन 22 या 24 सीटें जीते थे आरजेडी वाले. सर, पॉलिटिकल डेथ हो गई थी उनकी. पीके शाही जो चुनाव लड़े भी नहीं थे, नीतीश कुमार ने उनको मंत्री बना दिया, शिक्षा मंत्री बना दिया, और पीके शाही को विधान परिषद से मनोनीत कर दिया, एमएलसी बना दिया. आप जानते हैं क्योंकि मंत्री बनिएगा तो 6 महीने के अंदर आपको किसी न किसी सदन का हिस्सा तो बनना ही है ना. अब फिर अभी देखिए, जब से अभी अगस्त में पिछले साल जब से आरजेडी और जेडीयू की गठबंधन की सरकार बनी, आरजेडी और जेडीयू की गठबंधन की महागठबंधन की सरकार बनी, तो फिर से माय डियर स्टूडेंट्स, पीके शाही को एडवोकेट जनरल बनाया गया. एडवोकेट जनरल बनाया गया तो किनके कहने पे बनाया गया? ऑफ कोर्स नीतीश कुमार के कहने पे बनाया गया. तो एडवोकेट जनरल कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस्ड होता है. जिस तरह के आपके संबंध हैं स्टेट लेवल पे, उस तरह से आप एडवोकेट जनरल बनते हैं. और जिस तरह से आपके संबंध है प्राइम मिनिस्टर के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, आप अटॉर्नी जनरल बनते हैं. आई होप दैट आई हैव मेड द पॉइंट वेरी वेरी क्लियर एंड यू हैव अंडरस्टूड इट इन ग्रेटर डिटेल. राइट? आई डोंट थिंक दैट यू हैव एनी डाउट so far as Advocate General is concerned under Article 165 of the Indian Constitution. Right? So guys, now coming on to the second question for today. The question is before you, that is, which committee is related to the Panchayati Raj institution? कौन सी कमिटी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है? ये यूपीएससी में, जुडिशरी में, क्लैट में कितनी बार पूछा गया है यार, गिनती नहीं है जितनी बार ये सवाल को पूछा गया है. ऑप्शंस आर मधोलकर कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, मैलीमठ कमेटी, खुल्लर कमेटी. यार इसका एक बच्चा को भी पता है, जो थोड़ा बहुत भी जीके की जानकारी रखता है, लीगल जीके की जानकारी रखता है, कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी रखता है, उसको पता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने पंचायती राज को एस्टैब्लिश किया बाय द वर्च्यू ऑफ 73rd अमेंडमेंट, 73वां संविधान संशोधन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पंडित नेहरू के डायरेक्शन पे राजस्थान के राज्य में नागौर जिले में पंचायती राज की पहली बार स्थापना हुई. आप सब लोग जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि पंचायती राज क्यों आया भाई? पंचायती राज इसलिए आया टू डिसेंट्रलाइज द पावर, टू एस्टैब्लिश द सेल्फ गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, एट द ब्लॉक लेवल, एट द पंचायत लेवल, एंड टुडे इट इज इवन एट द वार्ड लेवल. वार्ड पार्षद के चुनाव हो रहे भाई साहब, वार्ड सदस्यों के चुनाव हो रहे, गली मोहल्ले का भी एक नेता बन रहा है.
गली मोहल्ले, अगर आपका प्रॉब्लम होगा तो आपको दिल्ली, पटना, प्रखंड में, अनुमंडल में, जिला में, राज्य में, केंद्र में, राजधानी में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने वार्ड सदस्य को बना सकते हैं कि मेरा नल जल योजना कहां गया। आप अपने वार्ड सदस्य को बता सकते हैं कि मेरा कुआं कहां गया, मेरा चापाकल कहां गया, मेरी बिजली क्यों नहीं चली, मेरा नाला क्यों अभी तक खोदा हुआ है, इसका प्रोग्रेस कब होगा। दैट इज द डिसेंट्रलाइजेशन, दैट इज द पंचायती लेवल, पंचायती राज, दैट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। I hope that you have understood my point. So now my students, my wonderful students, coming on to the next question for today, and that is very important question, that what is the minimum number of judges who are to sit for the purpose of deciding any case involving substantial question of law as to the interpretation of the constitution। सवाल यह है मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, दैट इज न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या क्या है जिन्हें संविधान की व्याख्या के रूप में कानून के पर्याप्त प्रश्न से संबंधित किसी भी मामले को तय करने के उद्देश्य से बैठना होता है। ऑप्शंस हैं 3 जजेस बेंच, 5 जजेस बेंच, 7 जजेस बेंच, 9 जजेस बेंच। माय डियर स्टूडेंट्स, द करेक्ट ऑप्शन इज 5 जजेस बेंच। आप लोग जानते हैं कि 5 जजेस के बेंच को क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। राम मंदिर के जजमेंट में कितने जजेस थे? 5 जजेस थे, 5 जजेस थे। Of course, the Chief Justice of India at that point of time, Honorable Mr. Justice Ranjan Gogoi, had delivered the judgment and he was the Chief Justice, and there were 5 judges. But my dear students, there was one Muslim judge also, Honorable Mr. Justice Abdul Nazir। 5-0 का यूनानिमस जजमेंट था। पांचों जजेस ने फेवर में बोला कि राम मंदिर, भगवान राम लला का जन्म वहीं पे हुआ था, जन्म स्थान वही था, अयोध्या में वहीं पर राम मंदिर बनेगा और राम मंदिर वहीं पर बन रहा है और 2024 में वहीं पे उद्घाटन होगा और रामलला का भव्य मंदिर का दीदार आप सब लोग कर सकेंगे। भगवान राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जो कि भारत की आस्था के प्रतीक है, जो भारत में मर्यादा की प्रतीक है कि लोग किस तरह से मर्यादा में रहते हैं, इसके प्रमाण है, इसके प्रतीक हैं, उसकी स्थापना की जा रही है और आप सब लोग अगले साल से उनके दर्शन कर पाएंगे। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा था और इसमें 5 जजेस बेंच थे, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था। सैकड़ों सालों की लड़ाई थी भाई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे के जो चेयरमैन थे वो भी मुस्लिम थे, उन्होंने भी बोला कि रामलला यहां पे थे, यहीं पे जन्म हुआ था, यहीं पे मंदिर था। अब्दुल नजीर जो कि मुस्लिम थे, उन्होंने भी बोला। इसी केस में राजीव धवन जो कि मुस्लिम पक्ष के वकील थे, उन्होंने फाड़ दिया था पेपर्स को, डॉक्यूमेंट्स को, पिटीशन को केस के समय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में उन्होंने फाड़ दिया था, धज्जियां उड़ा दी थी और फेंक दिया था इस तरह से पूरे कोर्ट रूम में, राजीव धवन। लेकिन स्थापना हो रही है और आप सब लोग भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र का दर्शन कर सकते हैं। मैं एक पासिंग रेफरेंस में आपको बात बताना चाहता हूं कि त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ, उन्होंने यह बताया कि मर्यादा में किस तरह से रहते हैं, और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उन्होंने यह बताया कि मर्यादा में कैसे रखते हैं, मर्यादा में कैसे रखते हैं और कैसे रखते हैं, इसके प्रतीक है भगवान श्री रामचंद्र और भगवान श्री कृष्ण। राइट। सो इस क्वेश्चन में और इसी तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आपका डिमोनेटाइजेशन में भी बना था, डिमोनेटाइजेशन में भी बना था, जहां पर 4:1 का जजमेंट आया था। 4 जजेस ने बोला था कि डिमोनेटाइजेशन वैलिड है। एक जज जो लेडी जज थी, बी नागारत्नम, उन्होंने बोला था, डिसेंटिंग जजमेंट दिया था और उन्होंने बोला था कि वैलिड नहीं है क्योंकि आरबीआई से परमिशन नहीं ली गई, आरबीआई से कंसेंट नहीं लिया गया। राइट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है सेकंड ऑप्शन, दैट इज 5 जजेस बेंच, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। राइट।
I think that you have understood these questions, and these questions are of very great and high significance, and I hope that कि आपको एकदम काफी क्लियरली ये सारे सवाल समझ में आ गए हैं, और मैं आशा करता हूं कि अगर इस तरह के सवाल आएंगे तो you will be able to answer it not only in prelims exam, but you will write a wonderful answer even in the mains exam, and even if it will be asked in the say during the interview, then you shall be answering very perfectly with its constitutional essence, with complete perfection as well, right? So guys, meet you soon tomorrow in the next session. Till then, take care, bye bye, Shubh Ratri, Sabha Khair, Jai Hind, Jai Shri Ram.